کہیں کہ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. ساتھی سے بولیں آمین آمین ہاللیلویا. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، جو آپ بولتے ہیں آپ پر بھی وہ برکت ٹھہرتی ہے اور دوسرے پر بھی ٹھہرتی ہے. آمین. تو کیوں نہ برکت والے ورڈز بولے جائیں ایک دوسرے کے لیے. ہاللیلویا. یہ جو پرنسپلز ہم دوسرے ہمسایہ مذاہب سے کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، ایکچولی یہ پرنسپل بائبل کے پرنسپل ہیں. ہاللیلویا. مسیح جب بھی اپنے شاگردوں کے پاس آئے، پھر زندہ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے. جب بھی ملتے تھے کیا کہتے تھے؟ تمہاری سلامتی ہو. آمین. سو ایماندارو، الفا میگا کلیسیا، ہم نے ضرور یہ سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے کہ اس ویلیو کو جب ہم چھوڑتے جا رہے ہیں تو پھر سے ہم نے اس ویلیو کو اپنانا ہے. ہاللیلویا. ملنے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ مسیح میں آپ کی، یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں سلام، بہن جی سلام، بھائی جی سلام، آنٹی سلام یا انکل سلام. ٹھیک ہے. سو سلام کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بھی ڈبل برکت ملتی ہے اور دوسرے پر بھی سلامتی ٹھہرتی ہے. ہاللیلویا. آپ کبھی اچھے اچھے منہ سے لفظ بولیں تو آپ کے دل کے اندر تسلی آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر افسردگی والے، مایوسی والے، ڈپریشن والے الفاظ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ منہ لٹکنا شروع ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. سو اچھے ورڈز، خدا کے وعدے، خدا کا کلام مقدس جو اس کے وعدوں سے بھرا ہوا ہے، سو میرے عزیزو اس کلام کو روز اپنی زندگی کے اندر لیا کیے. سو آئیں آج کے کلام مقدس کی طرف جلدی سے بڑھیں گے. میرے ساتھ کھولیے گا امثال اس کا 27واں باب، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حوالہ کھولیے گا جن کے ہاتھ میں بائبلز ہیں. یسایہ اس کا 14واں باب 12ویں آیت. یہ بھی میرے ساتھ کھولیے. یسایہ 14واں باب 12ویں آیت. یسایہ 14واں باب 12ویں آیت میں رہنمائی پڑھنے میں ہمارے بھائی خدا کے خادم سالک مورس صاحب، اور جو پہلی آیت ہے خدا کے خادم پاسر کاشف پڑھنے میں رہنمائی کریں گے. ہاں نہیں، آپ نے پہلا پڑھنا ہے 27 باب کی پہلی آیت. امثال مائک میں. سو غور سے سنیے گا خدا کے کلام کو. خدا کے مقدس کلام میں سے امثال اس کا 27 باب اس کی پہلی آیت. پہلی آیت. کل کی بابت گمان نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. میرے پیچھے یہ بھی پڑھے. کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا. آمین. دوسرا والا جی پاس کاشف پلیز آپ بیٹھ جائیں. خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے یسایہ 14 باب اس کی 11 آیت. نہیں، 12ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک. 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پشت کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھایا جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔
खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। थैंक यू। पहली आयत मेरे असीसों जो हमने पढ़ी, वो एक लफ्ज उसके अंदर जो आया है, लिखा कल की बाबत घुमंड ना कर। आगे एक और शख्सियत के बारे में खुदा के खादिम ने आपके सामने तलावत की। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। कितनों को समझ आ रही है किसके बारे में बात हो रही है? आमीन। थैंक यू। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। उधर मुकद्दस सुलेमान कह रहे हैं कि कल की बाबत घुमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। यहां पर एक चीज के बारे में हम देख रहे हैं और आपसे एक मिलजुल के हम कलाम को सीखते हैं हमेशा। एक छोटा सा सवाल आता है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा। इस कायनात के अंदर, जमीन नहीं, कायनात की बात कर, इस कायनात के अंदर सबसे जो पहला गुनाह है वो कौन सा हुआ? हाथ दिखाएं। राइट, काफी हाथ नजर आ गए। सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ? दोबारा दिखाएं हाथ, आपको कैमरे में लिया जा रहा है। आमीन। मैं पूछना चाहूंगा मुबश्शिर इरफान से कि सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ? बिल्कुल यूसुफ ने किया। और कौन सा किया? यही लफ्ज जो हम पढ़ रहे हैं। आमीन। तो लूसीफर का दूसरा नाम बाद में क्या पड़ गया? इब्लीस, शैतान। पहला इसका नाम क्या है? लूसीफर। और लूसीफर का हमने कई दफा आपके सामने बताया, लूसीफर का मतलब है सुबह का रोशन सितारा, रोशनी का मंबा। फिर इसका एक और भी मतलब है सन ऑफ लाइट, रोशनी का बेटा। इंतहाई खूबसूरत टाइटल्स इसको दिए गए। इब्ने सहर, सुबह का बेटा, नूर का अलमरदार, रोशनी का फरजंद। एक और भी था, मीर मुगनी, बड़ा मौसीकार, ग्रेट चीफ म्यूजिशियन। और ऐसा है भी था। बिजलियां, रोशनियां इसके अंदर से निकलती होती थी। और ये बना ही कीमती पत्थरों के साथ था, और कीमती पत्थरों ही के दरमियान में ये रहा करता था। और जिस तरह से आज आप प्रस्तुश उठा रहे हैं, खुदा को प्रस्तुश बहुत पसंद है। आमीन, हालेलुया। खुदा चाहता मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी क्या करें? मेरी हम्द करें, मेरी प्रस्तुश करें। तो प्रस्तुश क्या करें? शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा। ये क्या है? प्रस्तुश। क्या है? प्रस्तुश। कितने जो गाते हैं, सर में दर्द हो तो क्या? पेनाडोल। यस, शुक्र यहोवा दा ही करो। पेनाडोल भी ले, लेकिन साथ क्या करें? शुक्र यहोवा, प्रस्तुश। घर के अंदर अगर हालात उल्ट जा रहे हैं तो खुदा की प्रस्तुश शुरू कर दे। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी गवाहियां, जब खानदान बुलाते हैं घरों में दुआ के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, और कहते हैं कि हालात बदल रहे थे, लेकिन जब हमने शुक्रगुजारी शुरू की तो उसी लम्हे हमारे खानदान के हालात बदल गए। हालेलुया। सो यहां पर क्या देख रहे हैं इसके बारे में? इंतहाई खूबसूरत इसको टाइटल्स दिए गए, बड़ी इज्जत दी गई, बहुत कुछ ऑनर के साथ तमाम फरिश्तों में। मेरे अजीजों, ये मुकर्रब फरिश्ता है। और मैं एक दिन पहले भी बता रहा था कि मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? 3। एक लूसीफर, दूसरा क्या है? जबराइल, और तीसरा क्या है? मीकाइल। 3। सो बड़ी इज्जत, बड़ी ऑनर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? जो खुदा के खादम ने पढ़ा है
इसके अंदर 5 किस्म की मैं आ गई, और कभी कभी ये मैं हमारे अंदर भी आती है। अगर मैं ना होता तो मेरे घर से पता नहीं की हो जाता। होता है, ऐसे कहते हैं ना, मैं, मेरी वजह से ये तरक्की। क्यों भाई अमजद भट्टी, अबू कैसे हैं? अब घर आ गए? हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, आमीन। सो 5 किस्म की मैं इसके अंदर, ये मैं अक्सर हमारे अंदर भी आ जाती है कि मेरी वजह से ये इदारा, मेरी वजह से ये खानदान, मेरी वजह से ये यहां भी क्या हुआ। पहली मैं इसने क्या कहा, अपने दिल में कहने लगा मैं आसमान पर क्या हो जाऊंगा, चढ़ जाऊंगा। बोले मेरे पीछे, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। अगली मैं अभी देखे, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। किसी शायर ने कहा है कि सितारों से जहां और भी हैं। सो ऐसी सोच अगर इंकरेजमेंट के लिए कहा जाए तो अलग बात, ये इब्लीसी सोच है। पहली सोच क्या है, मैं आसमान, क्या है, क्या कहा गया है, मैं आसमान पर क्या हो जाऊंगा, चढ़ जाऊंगा। और आगे क्या है, मैं अपने तख्त को कहां करूंगा, सितारों से भी ऊंचा करूंगा। तीसरी मैं शिमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। चौथी, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। पांचवी मैं खुदा ताला की मानिंद हो जाऊंगा। क्या हुआ इस मैंने, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, जब इतनी बड़ी, जब इसने बगावत कर दी, घमंड में आकर, गरूर में आकर, फिर क्या कहा गया, लेकिन तू पताल में खड़े की तह में उतारा जाएगा। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। इस मैं की वजह से, क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा को हमेशा ह्यूमिलिटी, खुदा को हम्बल हार्ट, खुदा को शिकस्ता दिल, जो उसके हजूर आकर कांप जाते हैं, जो उसकी हजूरी में आकर गिर जाते हैं, जिनके घुटने खुदा के हजूर में झुक जाते हैं, खुदा को ऐसे लोग पसंद। और जैसा हमने पहले पढ़ा कि कल की बाबत घमंड ना कर। हमारी हर चीजों का मंबा हमारा खुदा, हमारी सेहत, हमारा रुपया पैसा, हमारी बरकत, हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारी जॉब, हर चीज मेरे चीजों, ये सिर्फ उसके फजल से है। हालेलुया, मेरी वजह से नहीं है। किसकी वजह से है? उसके फजल से। और ये मैं जिन में आई, आप जानते हैं नबूकदनेस्सर का बेटा बेल्तशस्सर, उसके बाप ने क्या किया, यरूशलेम पर अटैक किया, हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया, और हैकल के मुकद्दस ज़रूफ उठाकर कहां ले आया, अपने मुल्क में ले आया। उसके बाद उसके बेटे ने एक जश्न मनाया, और जश्न कौन सा मनाया कि मेरे बाप ने जो बनी इस्राइल पर फतह हासिल की, हैकल को खत्म किया, और वो जो मुकद्दस ज़रूफ है वो उठा लाया। अपने मेरे अजीजों, मैं फुलाने वालों को, अपने साकियों से कहा, लाओ वो बर्तन जो खुदा की हैकल के बर्तन हैं, ताकि हम सब मिलकर उनमें क्या करें, मैखोरी, एक बड़ी फतह बनाए। क्योंकि मेरा बाप फतेह था, मैं भी फतेह हूं। उसके बाद क्या हुआ, अभी ये काम शुरू ही होने लगा है, तो क्या हुआ, वहां पर एक हाथ नमूदार हुआ सामने दीवार पर। क्या लिखा, मिने मिने तकीलो फरसीन, मैंने तेरी ममलकत का हिसाब किया और तो क्या निकला, कम निकला।
खुदा मेजर करता है, तोलता है, खुदा देखता रहता है। मेरे शीशो कितने में कलाम को सुन रहे हैं? हाथ जरा लें, जरा इनको हाथों, दोनों हाथ खुदा उनके जलाल के लिए लहरा दो। आमीन, हालेलुया। सो मेरे शीशो, आज इस बात को अपने जहन में, अपनी जिंदगी में लेना। और जो ही उसने ये काम शुरू किया, एक हाथ नमोदार हुआ। पहले बड़ा फख्र, उसने कहा कि मेरी ममलकत नाकाबिले तस्खीर, और मेरे महल के अंदर ये कैसे आ गया? यहां मैं थोड़ी डिटेल बताना चाहूंगा आपको इसके महल और इसके शहर की। बाबुल की फसील जो थी, बाबुल शहर की जो फसील, ये ऊंची पता कितनी थी? 350 फुट। 350 फुट भाई एजाज कितने बन जाते हैं? बहुत बुलंदी। 350 फीट ऊंची, चौड़ी 87 फुट। इसके बाद जमीन में जो इसकी गहराई थी वो 35 फुट थी, और 250 उस दीवार पर चौकियां बनाई हुई थी, जहां पर दिन रात फौजी उस शहर की हिफाजत करते रहते थे। 100 पीतल के दरवाजे, और इर्द गिर्द दरियाए फरात का पानी छोड़ा हुआ था, ताकि अगर दुश्मन खंदक भी खोदने की कोशिश करे तो तब भी दुश्मन ना सहे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब उसके अंदर मैं आई कि मैं और मेरा बाप बहुत फाते हैं, हमें कोई तस्खीर नहीं कर सकता, तो वहां पर एक हाथ नमोदार हुआ, और हाथ ने क्या लिखा? बोले मेरे साथ, मीने मीने तकीलो फरसीन, मैंने तेरी ममलकत का हिसाब किया और तू कम निकला। और क्या हुआ? जब दानिएल खुदा के बंदा को बुलाया गया, वो तफसीर जो थी उस आयत की गई, तो उसी रात, सुने मेरे अजीजों, उसी रात दारा बादशाह ने बाबुल पर अटैक किया और इस बादशाह को खत्म कर दिया। और बाबुल जो नाकाबिले तस्खीर समझता था, वो मेरे अजीजों उस पर दारा बादशाह ने हमला कर दिया और नबूकदनेस्सर का दौर खत्म हो गया। ये है खुदा का कलाम, घमंड की सजा। इसके बाद लूका की अंजील में भी लिखा हुआ है कि एक दौलतमंद था जिसकी जमीन में बड़ी फसल हुई। जब फसल हो गई, बहुत कुछ आ गया, बचत हुई, बहुत कुछ मिल गया, तो चाहिए क्या था? पहले फल किसको करने हैं? हमने पेश अपने खुदावंद को। हालेलुया, शुक्रगुजारी के साथ। इसने क्या किया? जब बहुत कुछ आ गया, सब कुछ भूल गया, खुदा को भी भूल गया। उसे कहा मैं क्या करूंगा? ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए माल जमा है। और उसने बजाय शुक्रगुजारी के एक घमंड, एक गरूर उसकी जिंदगी के अंदर आया। खुदा को शुक्रगुजारी पेश करता, खुदा के आगे मेरे अजीजों शुक्रगुजारी लाता कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बहुत कुछ दिया, तेरे फजल से इतना हुआ। उसने भी कहा मैं बड़ी बड़ी कोठरियां बनाऊंगा और अपने अनाज को वहां पर जमा करूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए माल जमा हुआ है। उसका भी क्या हुआ? ऐ नादान, तूने क्यों ये कहा? और उसी रात मेरे अजीजों वो खत्म हो गया और उसका माल और बाप जाता रहा। इसके अलावा आखिरी बातें करके फिर हम, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग आए, हिटलर, कार्ल मार्क्स, लेनिन, जो कहने लगे कोई खुदा नहीं, हम खुदा हैं, हम यीशु मसीह की बादशाहत को नहीं मानते, हम अंजील को नहीं मानते। हिटलर ने एक शख्स एल्विस प्रेस्ली, जिसने रॉक एंड रोल डांस मुतारफ करवाया, उसने कहा कि यीशु का नाम शायद दुनिया ना ले,
लेकिन रॉक एंड रोल में जॉन फ्रेस्ली का नाम जो है वो जरूर लिया जाएगा। अब क्या हुआ, जॉन फ्रेस्ली जिसने ये म्यूजिक ईजाद किया, 42 साल की उम्र में मेरे अजीजों उसने खुदकुशी कर ली। हिटलर ने भी खुदकुशी करके मर गया। आज उनके मकबरे ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि जो खुदा को छोड़ता, जो यीशु मसीह का नाम लेना छोड़ देता है, वो मेरे अजीजों दुनिया के लिए जा इबरत बन जाता है। एक और शख्स के बारे में हम बात करूंगा, जोसेफ स्टालिन। वो भी ये कहता था कि हम यीशु मसीह की बादशाहत को खत्म कर देंगे। एल्डो साहेब उसने ये भी कहा कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसको एथियस्ट कहते हैं, जो खुदा को नहीं मानते, सारी दुनिया का खुदा सिर्फ ये दौलत है और हम खुद ही खुदा हैं, हम जो करेंगे वही होगा। और क्या हुआ, कुछ सालों के बाद उसके अंदर एक डर पैदा हो गया। उधर ये कह रहा है यीशु को नहीं मानता, और आप अल्फा मेगा कलीसिया जो खुदा उनको मानती हैं, हमारे सारे चश्मे खुदा उनसे हैं। आमीन। आए खुदा उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आप मानते हैं इसलिए उसकी हजूरी में। जोसेफ स्टालिन ने कहा कि यीशु को खत्म कर दो, उसकी अंजील को खत्म कर दिया जाए। और कुछ सालों के बाद एक बीमारी लग गई, वो डरता रहता था और उसके महल के अंदर 7 कमरे थे और किसी को पता नहीं चलने देता होता था कि मैंने रात को किस कमरे में सोना। उसको यह डर था कि शायद मुझे कोई आकर मारते। और जो खाना लेकर आता था, जो शख्स उसका स्पेशल खाना बनाता, जो खाना लेकर, उसमें भी ट्रस्ट नहीं था बहनों। खाना जब सामने भाई नवीद पेश किया जाता तो क्या करता, जो खाना बनाकर लाता उसको बिठाता पास, कहता पहले आप खाना खाओ। फिर उसका 20 मिनट वेट करता। क्यों वेट करता, कि अगर खाने के अंदर कोई शामिल कर दिया गया तो ये मर जाएगा, मैं खाना नहीं खाऊं। इतना मौत से डरता था। और आखिरकार क्या हुआ, एक दिन आया, वो भी इस दुनिया से चला गया और सिर्फ उनकी जो यादगारें हैं वो इस बात को बताती हैं कि यीशु नाम जो है वो नाम सब नामों से आला है और उसके आगे आसमानियों के, जमीनियों के और जमीन के रहने वालों के आगे क्या होते हैं, घुटने झुक जाते हैं। हालेलुया। और यीशु नाम जिस जिंदगी के अंदर, जिस खानदान के अंदर, जिस मुल्क के अंदर आ जाता है, वो मुल्क, वो जिंदगियां खुशहाल हो जाती है और नजात उनको मिल जाती है, शिफा मिल जाती है। आमीन। 12 साल की औरत, 38 वर्ष का शख्स बैठा हुआ है, वेट कर रहा है। 38 साल का शख्स बीमार, कोई मदद नहीं। हर रोज फरिश्ता आता है आसमान से, उस हौज के पानी को क्या करता है, हिलाता है, और जो पहले उतर जाता है वो क्या पा जाता है, शिफा पा जाता है। 38 साल, 38 दिन नहीं, 38 महीने नहीं, 38 साल में भाई मजीद बंदा, शादी अगर 20 साल की उम्र में हुई हो तो बच्चे भी जवान हो जाते हैं। हालेलुया। बच्चों की कई शादियां भी। ये 38 साल से शख्स बीमार है। याद रखें मेरे अजीजों, जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं, उसको देखते हैं, जब आप आजिज़ी, जब आप मेरे अजीजों खुदा के अंदर हम्बल रहते हैं, जब खुदा के आगे आजिज़ रहते हैं, जब खुदा के आगे खड़े रहते हैं, तो आसमान से आपके लिए मदद आ जाती है। लेकिन अगर आप अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं तो फिर मेरे अजीजों कोई मदद नहीं आती, बल्कि परेशानी और तारीकी का हम शिकार हो जाते हैं, जिस तरह से इब्लीस कराया गया। फिर ये लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूं, अब क्या हुआ, एक दिन मेरे अजीजों उसकी जिंदगी में एक रोशन दिन आ जाता है। हालेलुया। जो उस हौज को भी बनाने वाला है, जो फरिश्तों को भी बनाने वाला है, वो मेरे अजीजों उस जगह पर पहुंच गया और जाकर क्या कहा, क्या बात है, तुझे कितने सालों से तू बीमार है? कहता मैं 38 साल से बीमार हूं। तो कहता तू शिफा क्यों नहीं पा रहा? कहता मैं शिफा पाऊं कैसे, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई मददगार नहीं, मेरी कोई हेल्प के लिए नहीं आ सकता और मैं खुद जा नहीं सकता। और जब मैं कोशिश करता हूं
तो मेरे से पहले कोई या तो कोई किसी का रिश्तेदार ले जाता है या वो खुद चला जाता है। उसके बाद क्या हुआ? इस 38 साल से के मेरे अजीजों पहाज शख्स के सामने आसमान और जमीन का खालिक, जिसने कहा मौत और आलम अरवाह की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है। जिसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, उसने कहा उठ और चल। फिर क्या हुआ? 38 साल शख्स के अंदर एक नया रिवाइवल, एक नया इनकलाब आ जाता है। क्योंकि मेरे अजीजों, जो शख्स बनाने वाला है, जो आंखों को भी बना देता है, जो बंद वाल को खोल देता है, जो मेरे अजीजों इंसान को बनाने वाला है, कायनात की एक एक चीज का खालिक है, वो उसके सामने खड़ा है। और जब कहा जाता है, जो कहता है वो हो जाता है। और उसके बाद वो 38 साल का शख्स जो था, बीमार था, वो चलना फिरना शुरू हो गया और खुशी मनानी शुरू हो गई। उसने कहा मेरी जिंदगी के अंदर मेरे खुदा ने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। सो मेरे अजीजों, वक्त है, टाइम है, ऐसे खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। मेरे अजीजों, इस दुनिया में भी वो आपका खुदावंद है और इसके बाद हमेशा की जिंदगी भी आपकी है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे।